Welcome class 10 student. Like all of you know, we are doing this chapter coordinate geometry. In my previous video I have already explained you about the concept of distance formula, or in exercise 7.1 complete exercise is based on distance formula. So let's begin the exercise. तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ डिस्टेंस फार्मूला के बारे में, तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 7.1. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. तो जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, हमें पेयर ऑफ पॉइंट देखा, तो आई विल कंसीडर दिस पॉइंट ए अप टू हेयर दिस डिस्टेंस बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो दिस पॉइंट आई एम कंसिडरिंग 2,3 और दिस आई एम कंसिडरिंग 4,1. ऑलराइट, सो हेयर यू कैन सपोज लाइक दिस इज अ x1 y1 पॉइंट, or this you can say x2 comma y2 point. All right, if you want to write it the value, you can write like this also कि भाई x1 value have what 2 and y1 value have how much 3. Okay, and here you have x2 value is how much 4 and y2 value you have how much 1. All right, so now we have to apply the distance formula. So we know the distance formula, we have to find the distance between a and b, and we have the distance formula is square root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This we have to find it. Now AB. So only just in the square root we have to put the value. x2 value is how much we have here 4. Here is the minus sign. x1 value is how much 2 whole square plus y2 value is 1 and y1 value is 3 whole square. So now we can going to solve this value. If we subtract 2 from 4 we get 2 and here we get minus 2 का whole square. So this value will be 4 plus 4. So AB value will get how much? Square root of 8. Now you already know if we solve this square root it will be 2 into 2 into 2, and we already know from the square root we take the pair out, so it will be 2 root 2 unit. It's a very simple question. अब the same part is there. Now general step I have already informed you about this question to follow it. Now I will do this question little directly. So here again we'll consider A and B point like this. A is what, like minus 5 comma 7. Here we take minus 1 comma 3. So I will consider this point will be x1 y1, or this point I will consider x2 comma y2. So we already know the distance formula is the square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here we have x2 value is how much? Minus 1 is here. In the formula we have a minus sign, and here x1 value is minus 5. So sign will be changed, it will become plus 5 whole square. And here y2 is how much 3. Minus sign is there, and y1 value is how much 7. So now we have to solve this. So now we are going to solve this is minus 4 whole square, sorry plus 4 whole square, because 5 minus 1 is plus 4, and here we have 7 minus 3 is minus 4. So AB value is how much? It is 16 plus 16. So you can write like this, 16 plus 16 is how much? 32. And we can break like 32 quickly. I am writing like this, 4 into 4 is 16 and 16 2 is 32. So it means it will come out 4 root 2 unit. Alright, distance unit is there. In the same way we have the third part. Here we can consider AB. Alright, here this point we can say AB, and this point we have minus A and minus B. So I am going to consider this point x1 y1, and this point will be x2 comma y2. So now we have to use the distance formula, same only, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we'll put the value. Here x2 value is what? Minus A, minus sign is there, and x1 value is how much? A whole square. Y2 value is what? Minus B, and y1 value is only B. So if you solve this you will get minus 2A whole square and minus 2B whole square. So here you will notice it will come 4A square plus 4B square, and if you take common 4, so it will be A square plus B square. And you already know like 4 you can factorize it like 2 into 2 like this, A square plus B square. So AB, so pair will come out 2 and it will be A square plus B square unit. Alright,
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑल 3 पार्ट बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला ओनली। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने एक पॉइंट और बी पॉइंट कंसिडर किया, टाउन मतलब 0,0 पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 36,15। इसको हमने बोल लिया x, y1। ऑलराइट, वी कैन से x2, y2। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो वी ऑलरेडी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज लाइक AB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू। x2 इज हाउ मच 36 माइनस x1 इज वॉट 0 का होल स्क्वायर, y2 इज हाउ मच 15 माइनस 0 का whole square. So if you see here, AB value is how much? This is 36 whole square and this is 15 whole square. Now you already know when we take the square of 36, it is 1296, and if we add 2 to 5, so it will come how much if you add this, like 1296 plus 2 to 5. If you add 6 plus 5 is 11, carry 1, 10 to 12, carry 1, 5 1. So you get value 1521 and which is the square root of, square of 39. So AB will come 39, pair will come out, so it will come 39 unit. Alright, now come to the question number 3rd. अब here it is given to you, determine if the points A 1,5, 2,3 एंड -1, -2, -11 आर कोलिनियर। ये मैं आपको पहले बता चुका था। कोलिनियर का मतलब जो पॉइंट एक ही लाइन में आते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस से पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं ऐसे करके A B, एक लाइन सिंपली खींच लेते हैं ऐसे करके और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 B C, मीन्स लिख लेते हैं A B C। अब 3 पॉइंट्स हमें क्या दे रखे हैं 1,5, दूसरा पॉइंट हमें दे रखा 2,3 और थर्ड पॉइंट हमें क्या दे रखा -2, -11। अब देखिए इनकी आप नेमिंग कर लीजिए, x, y1, x2, y2 और इसको लिख लीजिए आप x3, y3। पहले आप सिंपली कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, पहले आप सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करिए, आप AB की वैल्यू निकालिए। सो आपको पता है कि AB के लिए इसमें फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इन दो पॉइंट की बात हो रही है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालते हैं हम AB की। तो देखिए यहाँ से AB की अगर वैल्यू निकालने जाएँ सो x2 हमारे पास कितना है 2 और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू कितना है 3 और ये कितनी हमारे पास 5 का होल स्क्वायर। सो AB वैल्यू इज़, हेयर यू विल सी 1 का स्क्वायर इज देयर एंड हेयर यू हैव -2 का होल स्क्वायर। सो AB वैल्यू विल कम हाउ मच, लाइक 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सो यू गॉट द AB वैल्यू इज हाउ मच, √5 यूनिट। अभी आप इसको इतना निकाल के रख लें। फिर ऐसी आइए आपने AB निकाल लिया, आप एक काम करें BC की वैल्यू निकालें। किसकी निकालेंगे आप, BC की। सो देखिए BC के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा, अगर आप देखें यहाँ पे ये है तो यहाँ पे आएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मीन्स दिस माइनस दिस प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इट विल कम हियर। ऑलराइट, नाउ आप BC की वैल्यू निकालिए। सो BC की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देखेंगे x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, खाली आपके पास 2 है होल स्क्वायर, एंड y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -11 है, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का फॉर्मूले में था 3 है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए क्विकली से। सो आप देखेंगे यहाँ कितना आ गया आपके पास, -4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके कितना -11 और 3 आप करेंगे कितना आ जाएगा, -14 का इक्वल टू हमारे पास है, टेक द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इट विल बी 16 एंड इफ वी ऐड दिस इट विल कम 196। और अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 212, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 53, बिकॉज अगर 4 × 53 रखेंगे सॉल्व करके आपके ऊपर वाला वैल्यू आएगी, और आपको माने 4 के जो फैक्टर निकल के बाहर आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना आ गया, 2√53 यूनिट, 2√53 यूनिट आ गया आपकी। आपको AB का वैल्यू पता लग गया, BC का वैल्यू पता लग गया। AB आपने निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब आप निकालेंगे AC। तो अब हम निकालेंगे क्या, AC। अब देखिए AC निकालने के लिए अगर आप देखेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा AC है, तो AC में क्या x3 और x1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इस तरह क्या आएगा हमारे पास y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। x3 का वैल्यू कितना आपके पास क्या है,
माइनस का 2 है x3 का वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना है 1 है, ऑलराइट। और x3 का यहाँ पे सॉरी y3 का वैल्यू कितना है माइनस का 11 है, और यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है 5 है। अब ना इसको आपको सॉल्व कर लेना है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, और हेयर आ जाएगा 15 और 1 -16 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे AC, तो आपके पास कितना आ गया 9 आ गया, और 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, कितना होता है 256। तो इसको आप ऐड कर लीजिए। सो ऐड करके कितना आ रहा है आप देखिए 9 + 6 कितना होता है आपका 15 होता है, कैरी 1 हो गया यहाँ पे 6, और 260 कितना आ गया 265। सो हमारे पास आ गई AC की वैल्यू, हम इसको लिख सकते हैं 265 यूनिट। अब सिंपली आपने क्या देखना है, आपने लिखना है AC देखिए पूरी टोटल लाइन थी AC, किसके इक्वल है AC हमारे पास, AB + BC के, मतलब AB को हम लिख सकते हैं AB + BC। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 265 आई है, ऑलराइट, और AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी √5 आई थी, और BC को अगर आप देख लें इस फॉर्म में छोड़ दे तो कितना आया था √212 आया था जो हमने निकाला था। सो आपने देखा ये दोनों क्या आ रहे हैं आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलगा चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं अपने वीडियो में आपको बता ही चुका था पहले कि आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या है कि अगर हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं तो उसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लेट सपोज कर लेता हूँ कि ये जो 3 पॉइंट हैं इसके हैं, इसको मैं ग्राफिकली जनरल सपोज किया है। यहाँ पे A पॉइंट मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल -1, 2, और B पॉइंट मैंने मान लिया मान लो 6, 4, और C पॉइंट मैंने मान लिया मान लो 7, -2, और उसको लेट सपोज कर लिया x1, y1 पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया x2, y2 पॉइंट हो गया, और ये हमारा x3, y3 ऐसे पॉइंट कर लिया। अभी हमने इसको सपोज किया है ट्राइंगल को, तो हमने कहा कि आपको चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो भाई हमने इसको सपोज कर लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमने कंडीशन ही पड़ी थी कि कोई भी दो साइड का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब लेंथ भाई सेम होना चाहिए। तो पहले निकाल के देखते हैं, अगर आएगा तो हम उसको उस हिसाब से आंसर कर देंगे। तो देखते हैं हमें 3 साइड कौन सी आ रही है। पहली साइड क्या आ रही है हम पे AB आ रही है, कितनी आ रही है AB। तो अगर आप AB में देखें, अगर हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना चाहें अगर यहाँ से शुरू करते हैं AB में आ रहा है तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम AB की लेंथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास AB की लेंथ कितनी है, देखो x2 की वैल्यू कितनी दे रही है हमारे पास 6 - x1 की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 की वैल्यू कितनी दे रही है आपको 4, और हमें फॉर्मूले में माइनस है और इसमें तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस है लेकिन वैल्यू नेगेटिव थी। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको कितना आ गया 1 का स्क्वायर बच गया है, और यहाँ पे आपका किसका हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। तो आपने AB की वैल्यू निकाली, इसको रूट में रहने दीजिए 1 + 36, और ये आपके पास आ गई है √37 यूनिट। ठीक है, अब देखो आपने AB साइड निकाल ली, अब आप निकाल लीजिए BC साइड। अब आप BC साइड की वैल्यू निकालिए। तो देखिए BC साइड में अगर आप देखोगे BC, तो आपके पास फॉर्मूला कितना आ रहा है x3 - x2 का होल स्क्वायर और y3 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए x3 में आपने कहा कितना दे रखा है आपको 7 दे रखा है, और -x2 के लिए कितना दे रखा है 6 का होल स्क्वायर। y3 आपको कितना दे रखा है -2, और माइनस ये कितना दे रखा है आपको 4 का होल स्क्वायर। सो BC आपको दे रखा 7, ये आपका -6 है तो 1 का स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे आ गया -6 का स्क्वायर, -4 - 2 माइनस का 6 हो गया। अब इसको हम निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कितना आ गया 1, और 6 × 6 कितना आ गया 36। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया BC = कितना आ गया √37 यूनिट। देखिए वैसे तो अभी हमें इसकी तीसरी निकालनी चाहिए थी, लेकिन जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पहले पता लगा देखो AB हमारे पास √37 आ गया और BC हमारे पास √37 आ गया। मतलब हमारे को पहले पता लगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, दोनों सेम आई। क्वेश्चन को देखते हुए पता लगा कि जो ट्राइंगल है हमारे पास AB और BC, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई √37 यूनिट आ गई है। ठीक है, तो अब हमें तीसरी निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी नो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्राइंगल आपका ABC है, जो आपका ट्राइंगल ABC है वो क्या है, इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, हमें कैसे पता लगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कैसे पता लगा, क्योंकि हमने देखा कि दो साइड इसकी क्या आ गई है, उनका डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, तो 6 करेंगे उसमें आपको आइडिया पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा, नेम द टाइप ऑफ अ कोऑर्डिनेटर फॉर्म
इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट कैन गिव योर आंसर। इसने कहा आपको 3 पॉइंट्स जो पॉइंट्स दे रखे हैं इनको आपको देख के बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास कोई 4 साइडेड फिगर है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर मान लो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल आ जाते हैं उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड इक्वल प्लस उनकी डायगोनल इक्वल आ जाती है तो बन जाता है रेक्टेंगल। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की चारों साइड बराबर हो जाए और उसके डायगोनल भी इक्वल आ जाए तो क्या बन जाता है आपका स्क्वायर बन जाता है। और सिर्फ अगर 4 साइड बराबर तो क्या बन जाता है रोम्बस। तो वही सब चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो यहाँ पे हम लेट सपोज कर लेते हैं जैसे मैं 4 पॉइंट दे रखे तो हम यहाँ पे काम करते हैं 4 पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो हमने देखा A B C D, तो इनको ऑर्डर पे पॉइंट को लिख दिया। जैसे हमने A B C D ऑर्डर पे लिखा, पॉइंट्स को भी ऑर्डर पे लिख दीजिए। कोशिश करना कि पॉइंट हमेशा ये जो लिखे सीक्वेंस वो ऑर्डर पे लिखे, जैसे A B C D। ऐसा नहीं होना चाहिए कि A आपने यहाँ लिख दिया B यहाँ लिख दिया, ऑर्डर पे ही लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। -1, -2 इन पॉइंट को हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे 1, 0। ये ग्राफिकली प्लॉट होकर भी आपको डायग्राम ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो मीन्स 4 साइडेड आएगा। C पॉइंट आपके पास कितना -1, 2 है और D पॉइंट कितना आपके पास -3, 0 है। तो इन पॉइंट को आप नेमिंग कर लीजिए। आप नेमिंग कर लीजिए x1, y1, इसे आप नेमिंग कर लीजिए x2, y2 और इसको आप नेमिंग कर लीजिए x3, y3 और इसको आप कर लीजिए कितना है x4, y4। ये आपने नेमिंग कर ली पॉइंट्स की। तो आपको क्या है ना सबके डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालते पहले हम निकालते हैं AB की, AB। अब तो आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ। AB का आप निकालेंगे कितना आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो AB की अगर आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे x2 कितना है मेरे पास 1 और x1 कितना मेरा माइनस का है तो +1 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही y2 कितना है आपका 0 और ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। साइन चेंज हो गए हैं। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 4 हो जाएगा और आ गया 4। तो आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ गई √8। आप इसको √8 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को। BC साइड की AB आपने निकाल लिया, अब आप निकाल लीजिए BC। तो देखिए अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन, अब आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूला। तो BC के लिए अब मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, अब आपको समझ आई गया है। तो इसमें क्या होगा कि भाई ये वाली वैल्यू मैंने ये वैल्यू करनी है। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। BC की वैल्यू कितनी रखी -1 दे रखी है हमारे पास और -1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे प्लस, और BC में क्या है 2 है और 2 - 0 आ जाएगा यहाँ पे का होल स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई है। यहाँ पर क्या -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4। तो आपने देखा BC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √8 आ गई है। अब इसी तरह AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे CD। तो इसे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो CD निकालना है तो मतलब क्या होगा x4 - x3, x4 - x3। तो अगर आप देखेंगे x4 का वैल्यू कितना देखा -3 और इसके वैल्यू वो देखिए तो -1 साइन चेंज हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कितना हो जाएगा ये 0 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 - 1 का होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और +4। CDB की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √8 आ गई है, ओके। अब हमने निकाल लिया AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब हम निकालेंगे DA। क्या निकाल लेंगे इसको मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ DA। जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं DA निकालना है तो आपकी DA का मतलब क्या हो गया x1 - x4 होगा। सो -1 तो आपका ये है और माइनस का वो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे कितना आपके पास -2 है और यहाँ पे कितना है 0, सो 0 का होल स्क्वायर। सो अगर आप DA की वैल्यू देखेंगे तो वो आपकी कितनी आ गई -3 - 1 2 करेंगे तो उसका करेगा 4 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 4। तो ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई √8 आ गई। तो अभी आपने देखा यहाँ पे आपने नोटिस किया कि आपकी सारी वैल्यू सेम आ गई है। मतलब कौन सी आपने कहा AB BC CD और DA जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आपकी किसके इक्वल आ गई हैं √8 के बराबर आ गई हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या है सारी बराबर हैं। तो अभी तो हमें एक ये मिल गया कि चार साइड बराबर आ रही हैं। अब क्योंकि अब बात ये है कि ये रोम्बस भी हो सकता है या फिर स्क्वायर है। तो रोम्बस तो अभी हम इसको कह सकते हैं रोम्बस, लेकिन अभी हम इसकी डायगोनल चेक कर लेते हैं। अब डायगोनल में कौन सी आती है? अब डायगोनल का ऐसे ज्वाइन कर लिया आपने, डायगोनल ज्वाइन की AC और आपने ऐसे ज्वाइन किया कौन सा BD, ठीक है। अब आप डायगोनल ज्वाइन कर लिया। अब AC की वैल्यू भी निकालिए पहले। अब देखिए AC की वैल्यू निकालता हूँ। अब देखो इसको AC को डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा मैं लिख देता हूँ, चलो आपके लिए x3 - x1, क्योंकि देखो AC है ना, देखो जो बाद में होता है AC है C है तो x3 - x1 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। एंड प्लस इसी तरह हम बात करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप AC की वैल्यू निकाल लीजिए।
सो x3 की वैल्यू कितनी आपके पास -1 है, और इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो -1 +1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास कितना है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 है, और -2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो 0 हो गया यहाँ पे। 0 + 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √16 यूनिट आ गई। आप इसी तरह आप इसके निकाल लीजिए, किसकी, BD की। आपने कब निकालते हैं BD की वैल्यू को, BD। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, वरना आपको लिखने का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x4 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 - y2 का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए BD है, तो x4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3, फॉर्मूले माइनस होता है तो कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कितना देखो 0, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है इसका 0 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपने BD को सॉल्व किया, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे -3 और -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 0। तो यानी BD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √16 यूनिट आ गई। इतना क्लियर है। अब आपने एक बात देखी कि इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक तो सारी साइड इक्वल आ गई, मतलब AB BC CD D है ये इक्वल आ गई, और इनकी डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ गई। तो यानी कि जो ये आपने इसको जो लिया था ABCD, ये एक्चुअली क्या है, इज़ अ स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोला था कि आपको इसके ऊपर कमेंट बताना है, इसलिए लिखा था नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, इसमें आपने देखा चारों साइड बराबर आ गई हैं और डायगोनल इक्वल आ गई हैं, तो ये क्या है एक्चुअली अ स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, अब इस तरह इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है। देखिए अब जैसे 1 2 3 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आप इनको ऐसे सिंपली चेक कर लेंगे। तो अगर आप चेक करेंगे तो उस कंडीशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो थोड़ा इसमें इसको एक तरीके से और भी बता सकता हूँ। वैसे तो एक तरीका क्या, फॉर्मूला अप्लाई करें, फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा, खाली आपको देखने की साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। और एक कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, जैसे ये देखिए, अब इसको आप यहाँ देखिए, इसमें अगर मैं नेम एक प्लॉटिंग कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दूँ मैं यहाँ पे 1 बड़ा पॉइंट कौन सा 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए पॉइंट प्लॉट करते हैं, क्या पॉइंट है, -3 है और हमारे पास 5 है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है। फिर क्या हमारे पास 3,1 है, तो 3,1 एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ऑल राइट, एक क्या हमारे पास 0,3, एक हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये। ऑल राइट, और एक और पॉइंट क्या हमारे पास -1, हमारे पास -1 ये है, और दूसरा पॉइंट कौन सा -4 -1 और है आपका -4, ये यहाँ पे आ रहा है कहीं पे। सो अब आप खुद ही देखिए, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। गेटिंग माई पॉइंट, इसका इधर से तो कोई कनेक्शन बन ही नहीं रहा है कि 4 साइडेड फिगर नहीं बन पा रहा है। सो एक्चुअली ये क्या है, 4 साइडेड फिगर नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन के पॉइंट लग रहे हैं वाले, एक साथ नहीं है। स्ट्रेट लाइन मतलब इसका 4 साइडेड फिगर पॉसिबल नहीं है। और बाकी अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं आएगी, तो आप अंडरस्टूड है कि वो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, मतलब पैरेललोग्राम उसके उसमें नहीं आएगा। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन है आपके पास अगला, थर्ड पार्ट। अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल सेम है जैसे भी हमने क्वेश्चन किया, वही हमें टेस्ट करना है क्वेश्चन में। तो आप पहले नेमिंग कर लीजिए ABCD। ए पॉइंट रख लिया आपने कितना है 4,5, और दूसरा आपने लिखा 7,6, थर्ड आपने लिख लिया 4,3, और फोर्थ आपने लिख लिया 1,2। सेम इसको आपको नेमिंग कर लेंगे, आप लिख लेंगे X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 और X4 Y4, ये 4 पॉइंट हो जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूले नहीं लिखूँगा, मैं इसको डायरेक्ट करूँगा, आपको समझ तो आई गया है। तो डायरेक्ट कर लेते हैं फटाफट। देखो अब मैं AB की वैल्यू निकालता हूँ, AB। आप देखो हमेशा B की वैल्यू मतलब ये, तो इससे इसको माइनस करना है, तो कितना हुआ 7 - 4 कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए 6 - 5 कितना बच जाएगा 1 का स्क्वायर। सो आपके पास जो AB की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और +1 कितनी आ गई √10, कितनी आ गई √10। AB निकल गया। अब ऐसे आप निकाल लेंगे BC। अब देखिए BC को भी डायरेक्ट निकाल लीजिए, BC मतलब ये होगा, तो कितना हो गया 4 - 7 कितना बच जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 6 तो -3 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 18 यूनिट। कितनी आ गई 18 यूनिट।
आपको BC मिल गया, अब आप निकालेंगे CD। कितना निकालेंगे? CD। अब देखिए CD में निकालते हैं CD, तो CD में क्या हो जाएगा आपका 1 - 4 यानी -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2 - 3 तो -1 का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 3 का स्क्वायर आ गया 9 + 1 कितना आ गया √10। ठीक है, ये आपको CD मिल गया। अब आप निकालेंगे DA। क्या निकाल लेंगे? DA निकालना है तो यानी क्या होगा 4 - 1 यानी हमारे पास कितना आ गया 3 का स्क्वायर, और 5 - 2 यानी कि हमारे पास कितना आ गया 3 का स्क्वायर आ गया। तो आप देखेंगे DA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 का स्क्वायर 9 18 आ गया, 18 यूनिट। अब देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपने नोटिस किया, देखो AB की वैल्यू और आपकी CD की वैल्यू, मतलब AB और CD की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। वो कितनी है आपके पास? √10। नोटिस किया आपने। और आपके पास जो है ये BC की वैल्यू और DA की वैल्यू, मीन्स ये BC और DA ये दोनों वैल्यू, ये दोनों आपकी इक्वल आ गई। कितनी आ गई आपके पास? √18। तो अभी क्या है, अभी तो हमें ये पता लग गया कि अपोजिट साइड इक्वल आ गई है। अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ये बात तो समझा। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ रही है तो ये पैरेललोग्राम है। अब क्या पता ये पैरेललोग्राम तो है, क्या पता है रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? डायगोनल इक्वल आते हैं। हमें डायगोनल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कमेंट करेंगे कि क्या ये पैरेललोग्राम है या फिर ये रेक्टेंगल है। तो हम इसके डायगोनल चेक करने के लिए डायगोनल को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे कितना हो गया AC और यहाँ पे कितना हो गया BD। तो पहले आप AC की वैल्यू निकाल लीजिए। अब मैं यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट कर दूँगा AC, यानी कि C मीन x3 - ये वाला पॉइंट होगा हमारा कौन सा? x1 वाला। तो देखिए 4 - 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 - 5 करेंगे कितना बचेगा? -2 का स्क्वायर। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास इसमें √4 यूनिट आ गई। गेटिंग। अब इसके बाद हम चेक करेंगे BD। अब आप BD चेक कर लीजिए। सो BD के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? BD है ना, तो ये वाला माइनस ये करेंगे, तो 1 - 7 करेंगे कितना बच जाएगा? -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे हम 2 - 6 करेंगे कितना बच जाएगा? -4 का होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पे अगर BD की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास कितनी आ गई? 36 + 16। BD इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्चुअली 6 + 6 = 12, कैरी 1 4 and 1 5 यूनिट। तो हमने यहाँ पे देखा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रही है। डायगोनल्स क्या आ रही है आपकी? इक्वल नहीं आ रही है। तो ये इस बात का कंफर्मेशन हो गया कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इट इज़ अ पैरेललोग्राम। बस हमेशा याद रखिए कि जब हमारी अपोजिट साइड इक्वल आ जाती हैं तो उसके बाद हमें रेक्टेंगल के लिए इसको चेक करना है। रेक्टेंगल के इसको चेक करना है, क्योंकि अब हम बिल्कुल क्लियर हो गए कि भाई ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे थे 4,5 7,6 4,3 1,2, ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि ये जो पॉइंट्स हैं सिर्फ पैरेललोग्राम के हैं, क्योंकि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लिया कि अपोजिट साइड इक्वल आ रही है और इसकी डायगोनल इक्वल नहीं है। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। देखिए आपको कोई भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया इसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द, एक पॉइंट है कोई x एक्सिस में, तो आपको मालूम है जब भी मैं x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस का मतलब क्या हो गया? उसमें y का पॉइंट 0 है। x एक्सिस का मतलब है कि y का पॉइंट 0 है, आपको समझना होगा। जैसे मान लिया कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि y की वैल्यू कितनी है? 0। तो x पॉइंट ये हो गया। अब इसने बोला इट इज़ इक्विडिस्टेंस, तो इन 2 पॉइंट को ऐसे ले लेते हैं, ऐसे करके ट्राइंगल जैसा बना लेते हैं। हम कहते हैं इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, एक B पॉइंट ले लिया और एक C ले लिया। तो इसने बोला है कि 2, -5 और दूसरा पॉइंट कौन सा? -2, -9। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये पॉइंट है x एक्सिस पे, मतलब जो x, पॉइंट है वो C से, और इसकी दोनों की डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो आपका क्वेश्चन में मतलब ये है कि आपको AB = AC कंडीशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में। इक्विडिस्टेंस लिखा ना, इसने बोला है कि B पॉइंट जो A से और C पॉइंट जो A से इक्विडिस्टेंस में, तो ये अब इनको आप नेमिंग कर लीजिए, x, y1 और x2, y2 और x3, y3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको इस पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है AB। अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, अब तो आपको समझ आई क्या होगा चीज़ें। अब जैसे AB है तो मतलब B पॉइंट -A करते हैं ना, तो कितना हो गया? x2 - x1 होगा। तो x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमें? आप देखेंगे 2 दे रखी है, और वो वाली की दे रखी है x, तो उसको x ही रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? -5 दे रखा है और 0 का होल स्क्वायर। ये तो आपको वैल्यू होगी AB की। आप ऐसी AC निकाल लीजिए। अब अगर आप AC की बात करते हैं तो AC में कितना होगा? x3 - x1 होगा। सो x3 कितना दे रखा है आपको? -2, और वो कितना रखा? -x दे रखा है, और यहाँ कितना दे रखा है आपको? 9 और -0 का होल स्क्वायर। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को।
तो आप देखिए सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास। आप एक काम करिए, यहाँ पे एक पहले वर्ड कर लीजिए, आप देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ क्वेश्चन को। इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट तो दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोल लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 2 4 एक्स, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 25। ऑलराइट, ऐसे यहाँ पे स्क्वायर हट गया तो माइनस का मिलेगा, तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81। अब देखो दोनों तरफ बोर्ड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4, ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब बैलेंसिंग अगर आप करते हैं दोनों तरफ तो आप देखेंगे क्या आएगा। इसको अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास? 8x तो हो गया प्लस का, और 25, 81 से आप 25 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 81 से अगर आप 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बचता है? 11 में से 5 कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे 7 में से 2 कितना बचेगा? 5। तो आपके कितना बच गया? माइनस का 56, और x इक्वल टू माइनस 56 आ गया। अब इफ़ यू डिवाइड इट तो यू विल गेट -7। सो नाउ वी अंडरस्टैंड जो हमारा a कोऑर्डिनेट है x, 0 तो वो कितना हो गया? 7, 0। सो ये हमारा इसका राइट आंसर है। हमें फाइंड द पॉइंट निकालना ऑन द x एक्सिस। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट p इज 2, -3 एंड q इज 10, y एंड इट्स 10 यूनिट। अच्छा, क्वेश्चन में पहले हमें गिवन है, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लिया a और b, सॉरी a b नहीं, यहाँ पे दे रखा p एंड q। सो p आपको कितना दे रखा है? -2, -3 दे रखा है, और q आपको दे रखा है 10, y। और इस बार क्या है, हमें पहले से ही पता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रखी? 10 यूनिट। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 10 यूनिट। और हमें y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको x1 y1 मान लीजिए, x, y1, इसको आप मान लीजिए x, y2। अब सिंपल है, आप pq का फॉर्मूला लगाइए। pq का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आपको मालूम है क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि आपको p की वैल्यू पहले की कितनी रखी? 10। ये आपको दे रखा है 10। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। x2 कितना आपके पास? 10 -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना आपके यहाँ पे y है, और माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। 8 - 2 बचेगा, सॉरी 10 - 2 करेंगे कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9, और 3 2 6, y आ गया आपके पास। अब आप इसको देखिए सॉल्व करते हैं, कैसे आएगा सॉल्व करके। आप देखिए, अगर आप 100 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 36 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ। तो हमारे पास कितना है? y स्क्वायर है प्लस 6y है, और अगर हम 36 को इधर लेके आएंगे, उससे 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 हमारे पास बच जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल अब क्वेश्चन बन गया मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला। तो आपको ऑलरेडी 27 आ रहा है, तो वी कैन राइट लाइक दिस 9 3 29 इज 3 टाइम्स 27, तो वी कैन राइट लाइक 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से अगर हम कॉमन लेंगे y, सो इट विल बी y प्लस 9 एंड हेयर it is, we can take common -3, so it is y, sign will be changed, so your will be y plus 9 will be common and y minus 3 equal to 0. Now if you compare y plus 9 equal to 0 and y minus 3 equal to 0, so you get two values, y is equal to -9 and y is equal to 3. so आपके पास y की वैल्यू क्या हो गई? -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका पॉइंट है q वाला, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है? -9 और 3। ये आपका इसका क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 9, बिल्कुल सिंपल है। इसमें लिखा हुआ इफ़ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5, दिस p पॉइंट इज -5 -3 एंड r इज x, 6, फाइंड द वैल्यू x एंड देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे भी हमने पहले किया था। इसमें लिखा हुआ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। सो आप ऐसे एक ट्राइंगल जैसा बना लीजिए, यहाँ पे इसको लिखिए q। इसने बोला q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, ये इससे इक्विडिस्टेंस पे है। तो q का पॉइंट कितना दे रखा है? इसने 0, 1 दे रखा है आपको, और p की वैल्यू दे रखी है इसने 5, -3 दे रखी है आपको, और ये दे रखा है x,
माइनस 6। पहले तो पॉइंट में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये अभी आपने करना सीखा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे निकालेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पहले गिवन है कि भाई क्यू पी और पी आर आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, आपको समझ आ गया। क्यू पी लिखा तो 5 माइनस 0 करेंगे, सो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस 3 या माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये कैसे लिखा मैंने, ऐसे दिस होता है ना, जैसे अगर पॉइंट लेंगे हम तो दिस पॉइंट सब्ट्रैक्ट बाय दिस पॉइंट एंड दिस टू बी सब्ट्रैक्टेड विद दिस। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं पी आर की, पी आर सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा है, पी आर नहीं क्यू पी और क्यू आर होगा, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्यू इज इक्वेशन फ्रॉम पी एंड आर। तो ठीक है, क्यू पी एंड क्यू आर होगा, क्यू आर लेना है हमें। तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स लेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो स्क्वायरिंग तो हट गया, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और प्लस 3 मैंने ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। इधर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर और 6 माइनस वो करेंगे कितना बचेगा आपका 25। कितना बचेगा 25। दोनों तरफ आपका 25 कैंसिल हो गया। सो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 16। सो आपकी एक्स की वैल्यू दोनों हो गई, एक आ गई 4 और एक -4। तो अभी हमने फिलहाल यहाँ पे 4 ही कंसीडर कर लिए। ओके, अब क्वेश्चन बोलते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, क्यू आर एंड पी आर की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता लगी जो ये एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई है। कितनी आ गई है, 4। तो ये असल पॉइंट क्या बन गया, 4,6 बन गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्यू आर की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो देखिए क्यू आर तो फॉर्मूला एक्स से कितना क्या आएगा 4, तो 4 माइनस 0 का होल 1 का होल स्क्वायर हो गया। सो आप इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 25। सो 6 + 5 कितना हो गया 11, कैरी 1 2 3 4 √41 आ गया। आपकी इसकी वैल्यू आ गई √41 यूनिट। फिर ऐसे ही आप पी आर की निकाल लेंगे। तो पी आर के लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, 4 - 5 का होल स्क्वायर और 6 - 3, तो 6 + 3 हो जाएगा ये। सो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 - 5 1 बचेगा, और 6 + 3 9 का स्क्वायर कितना था 81। तो कितना आ गया आपके पास √82 यूनिट। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो हमारे यहाँ से इसकी वैल्यू आती है एक्चुअली स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो +-4 आती है। सो मैंने आपको +4 के लिए कंसिडर करके दिखा दिया। -4 के आप अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे, -4 बस यहाँ पे आपको क्या रखना है, -4 रखना है, वैल्यू कैलकुलेट करके सिंपल सा आंसर है। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th। इसने कहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो सेम है, आप यहाँ पे एक पॉइंट फिर से कंसिडर कर लिया, मतलब आपने पी क्यू एंड आर ले लिया है। ओके, अब इस बार क्वेश्चन में देखा कि पी ये आपका पॉइंट क्या दे रखा है x, y, तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ। और क्यू पॉइंट कौन सा दे रखा है आपको, इक्विडिस्टेंस वाला 3,6, और आपको दे रखा है -3,4। इसको मैं लेते हैं x2 y2 और इसको हम लेते हैं x3 y3। तो क्वेश्चन में पूछा है, बहुत बताया गया है कि भाई जो p पॉइंट है वो q और दोनों इक्विडिस्टेंस में, दोनों आपस में क्या बराबर है, और आपको अब क्या इनका रिलेशन निकालना। तो सिंपल है, आपने ले लिया पी क्यू और इक्वल टू पी आर। मैं पी क्यू और पी आर आपको दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बहुत आसान है, समझ गए होंगे आप अब तक। तो पी क्यू क्या है, 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर। ऑल राइट, अब ऐसे पी आर का करेंगे तो कितना आएगा, -3 - x का होल स्क्वायर और -4 - y का होल स्क्वायर आ गया। अब आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होता है कि रूट हट जाता है दोनों तरफ से। तो जब दोनों तरफ से आपका रूट हट गया तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 3 + x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 a² b² और 6x ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 36 + y² और माइनस का 12y। यहाँ मैंने अंदर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। आपको नेगेटिव तो माइनस कॉमन आएगा, तो असल में 3 + x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कितना आ गया 9 + x² और 3 × 2 6x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 16 + y² और 8y आ गया। ठीक है ना, अब देखो दोनों तरफ से कैंसिल कर रहा है, x² y² हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें आपके पास बच गया -6x -12y और 36 था आपके पास 36। ओके, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 6x बचा है हमारे पास, और -8y है, और +16 + 9 हमारे पास कितना हो गया 25। मतलब उनको सॉल्व कर लीजिए।
अब एक काम करते हैं, अगर हम देखिए सबको एक तरफ ले आते हैं, 6x से इसको मैं उधर ले आता हूँ तो कितना बच जाएगा 12। उधर लेने का मतलब है कि बैलेंस करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। बैलेंस आपको बताया कि दोनों तरफ से सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो इसको हम इधर लेके गए तो कितना हो गया 12, और आप इधर लेके जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4y, ओके। एंड 25 में से आप 45 हटाएंगे तो कितना बच जाएगा 20 इक्वल टू 0। अब सबसे देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बच जाएगा 3x प्लस y, और 4 5 जो 20। सो यहाँ पे आप देखेंगे रिलेशन आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्वेश्चन का रिलेशन निकल गया है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, प्लस 5 के इक्वल है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो NCERT की एक्सरसाइज है 7.1 ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। तो अगेन आपको बोलूँगा इसको एक्सरसाइज को बिल्कुल ढंग से करिएगा, और इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला में यही बनते हैं कि वो आपसे पूछ लेगा कि आप चेक करिए आइसोलेस ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है या फिर स्केलिन ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा 4 साइडेड फिगर में पूछ सकता है कि भाई ये जो गिवन 4 पॉइंट है वो रेक्टेंगल के पॉइंट है, तो आपको चेक करना है रेक्टेंगल चेक करना है तो अपोजिट साइड इक्वल आनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल आनी चाहिए। अगर स्क्वायर होगा तो 4 साइड बराबर आएंगे, डायगोनल इक्वल आएंगी। तो मेन के डिस्टेंस फार्मूला को आपको यूज़ करना है और आराम से एक्सरसाइज के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। सो जितने भी बच्चे मेरे से नए जुड़े हैं वो इस बात का ध्यान रखें, एक बार आप सीक्वेंस से अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स समझ आएगी, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सो लाइक यू ऑल ऑफ यू नो आई ऑल्सो नीड अ मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड। सो इफ़ यू आर रियली लाइकिंग माई वीडियोज सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज अमंग्स योर क्लासमेट्स, all right, and please motivate them to watch these videos because very helpful for you, and please like, share and subscribe my channel. Thank you students.